بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ افضل، آپ کے ساتھ نئے سال کی نئی خوشیاں اور پہلے دن کے اور پہلا مبارک دن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں کچھ اچھی خبریں لے کے۔ 2020 میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ سب آپ سب جانتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک کرونا نام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایک وبائی مرض کی صورت میں جو ایک بیماری ہم پہ مسلط ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس سے دعا ہے آج کی پہلے دن کی پہلی گھڑی میں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آئندہ آنے والا اور آج پہلے دن کی نسبت اللہ پاک اس بیماری کو دور فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، اور جتنے اس بیماری سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اعلیٰ درجات میں جگہ دے، اور جو لواحقین جو ان کے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جیسی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بسم اللہ کرتی ہوں آج پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان نے کیا کھویا پچھلے سال میں اور کیا پائے گا 2021 میں۔ آج اس کی ابتدا ہو چکی ہے، آج اس کی صبح کی پہلی کرن آپ کے پاس ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارا یہ سال 2020 کی طرح اور اس ناگہانی آفات اور ناگہانی اموات جو ہم پہ مسلط تھیں یا گزری ہیں، ہم ان حادثات سے اس سال بچ کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے اور تمام مشکلات سے جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں اس سے دور رکھے اور خلاصی دے، آمین ثم آمین۔ پاکستان میں جو حالیہ ٹائم اب چل رہا ہے، پاکستان کے زیچے میں 8th ہاؤس میں مارس یعنی کہ برج حمل میں ستارہ مریخ چل رہا ہے، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے۔ خانہ جنگی، آپس میں سیاسی پارٹیاں حریف آپس میں زیادہ غصہ کر سکتی ہیں، زیادہ ان میں نیگیٹو جو متحرک چیزیں ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ پاکستان، پاک بھارت اور ایران افغانستان بارڈر میں کشیدگی ہو سکتی ہے، خاص کر کیونکہ انڈیا کا ہمارے ہمسایہ ملک کا جو بھی ہے وہ ستارہ مریخ جو ہے وہ 12ویں ہاؤس میں اور 8ویں ہاؤس میں، جو کہ مریخ ایک فائری ستارہ اور فائری برج میں بیٹھا ہے، تو اس لیے سیاسی اور ملکی کشیدگیوں کے علاوہ ہمارے بارڈرز میں بھی اور ہمارے جنگی حالات بھی کچھ زیادہ کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ٹائم میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 22 فروری تک یہ رہے گا، جو کہ 25 دسمبر سے شروع ہو چکا ہے۔ ایسے تو اس کی جو ہلکی جو دھواں تھا وہ نومبر کے اینڈ سے شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ 22 فروری تک تھوڑا سا زیادہ خطرہ ہے۔ سیاسی تبدیلیاں آئیں گی اور ملکی حالات میں تھوڑا سا گڑبڑ کا خطرہ ہے، تو 22 فروری تک ہم سب کو اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یکجہت ہو جائیں اور ہمیں بیٹھ کے اس معاملے پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ ہم آپس میں دشمنیاں مول لے لیں اور سیاسی میدان میں نیگیٹو تھاٹس لے کے کود پڑیں، اور ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ انڈیا کا پاکستان پہ جو زیادہ برا ٹائم جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، یہ کمنگ جو ہفتہ ہے 2 جنوری سے لے کر یا 3 جنوری سے لے کر 8 جنوری تک، یہ کچھ دن جو ہے نا اس میں زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ رحم فرمائے، کرم کرے۔ میری دعا ہے کہ کوئی زیادہ شہادت یا کوئی زیادہ اموات کی شرح بڑھ سکتی ہے، اللہ اسے دور رکھے، اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے 22 فروری کے بعد حالات۔ اب میں آتی ہوں بین الاقوامی حالات پہ کہ پاکستان کے ساتھ جو
अच्छी कंट्रीज़ का जो इनका साथ रहेगा और जो इनके साथ तामुन करेगा, वो सबसे पहले है टर्की, चाइना और साउथ अमेरिका के कुछ इलाके, और मिडल ईस्ट के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। सऊदी अरब के साथ इसके ताल्लुकात जो हैं वो सफारती ताल्लुकात जो हैं वो दरमियाने दर्जे के रहेंगे। और जो है ना रशिया और क्या कहते हैं न्यूजीलैंड, इन ममालिक में थोड़ी सी कशीदगी रहेगी और इनके जो हालात हैं वो मतलब मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ज़लज़ले, वबाई अमराज से ज़्यादा क्या कहते हैं अमवात और कुदरती और नागहानी आफात से, जिसमें ज़लज़ला, जिसमें सैलाब और ये सारी जो नागहानी और आसमानी आफात हैं, ये इन मुल्कों में थोड़ा ज़्यादा इसका ख़तरा रहेगा। पाकिस्तान के हालात अगर देखे जाएं तो शरह तलाक के जो हैं वो शरह वो बढ़ेगी, और औरतों की तरफ देखा जाए तो फीमेल का, क्योंकि पाकिस्तान के तीसरे हाउस में सितारा ज़ोहरा और केतु है, तो इसलिए औरतों के जो काम हैं और इनसे रिलेटेड जो काम हैं, जो इनके प्रोफेशंस हैं, उनमें ज़्यादा कामयाबी और तरक्की मिलेगी। यानी कि औरतें इस पीरियड में, इस साल ज़्यादा अपने काम में तरक्की कर सकती हैं और कम्युनिकेशन उनका जो है उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ये अपने पैर जमा सकती हैं। बाकी एक और बात मैंने देखी है कि टेक्निकल एजुकेशन को इस साल के वस्त तक, यानी कि आप कह सकते हैं 22 अप्रैल से लेकर आगे सितंबर 2020 तक इसमें कोई टेक्निकली हम पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे हैं, हमारी यूथ है या हमारी अफराद हैं, उसमें ज़्यादा कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे और कोई ना कोई ऐसी इन्वेंशन या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान को गैर मुल्की या कोई एक नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता है। एजुकेशन जो है पाकिस्तान की जो सितारा है वो 21 में बहुत अच्छा होगा। मैं एक और बात बताती चलूँ कि 2021 का अदद जो इस दफ़ा बन रहा है 5 है। पाकिस्तान के लिए अदद 5, 7 और 1 बहुत बेहतर है, 9 भी बेहतर है, लेकिन 5, 7 और 1 बहुत एक्सीलेंट है। और इसमें हम इन मुश्किलात से पहला क्वार्टर जो है जनवरी 2020 से लेकर फरवरी तक थोड़ा सा गड़बड़ का टाइम है। 22 फरवरी के बाद या 25 फरवरी के बाद मई तक का टाइम फिर भी सेट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद मई और जुलाई के दरमियानी अरसे में थोड़ा बारिशें सफ़ा ज़्यादा होंगी, क्योंकि इस दफ़ा हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक बादशाह साहब जो है वो अतारत बन रहा है, तो उस हिसाब से बारिशों में, फसलों में और हमारी मैशी जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा कामयाबी और तरक्की होगी और इसमें ज़्यादा हमें ज़र मुबादला और ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और क्रिकेट की तरफ आएँ या ओवरऑल गेम की तरफ आएँ तो ये साल भी एक खुशखबरी लेके आ रहा है कि क्रिकेट के मैदान में और गेम्स के हिसाब में मैदान में जनवरी की 28 के बाद सितंबर तक इसका टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। सितंबर से लास्ट जो 3-4 महीने हैं वो मतलब एक नॉर्मल एक पीरियड गुजरेगा गेम के रिगार्डिंग। दूसरी बात मैं एक और कहती चलूँ कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि तलाक की शरह और खुला की जैसे ये कानूनी मुकदमात और ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि जुपिटर जो है इस चीज़ों को डील करता है। इसमें 22 अप्रैल के बाद थोड़ा सा इसमें बेहतरी आएगी। 22 अप्रैल से 16 जुलाई तक औरतों के कामों से रिलेटेड फीमेल जो प्रोफेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक तरक्की के रास्ते खुलने का इम्कान है। महंगाई के हवाले से बोला जाए तो अभी 22 फरवरी तक हालात थोड़े कशीदा ही हैं, तो कुछ हमें एक आइडिया भी हो रहा है, लेकिन 22 फरवरी तक जब तक इसका मार्स 17 मरीख
8वें घर से नहीं निकलता तो इसको ज़रा प्रॉब्लम रहेगी। और आवाम इससे, हम तो यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, लेकिन आवाम को इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सितारा मरीज़ जब 9वें खाना में, जब अब टॉरस में आएगा, वो टाइम है इंशाल्लाह 24 फरवरी के बाद। तो उससे हमें ये है कि गैर मुल्की इमदाद मिलने का इम्कान है, और वो हमें अच्छी खासी भारी एक इमदाद मिलने की उम्मीद है। और कोशिश होगी हमारी कि अल्लाह ताला हमें सीधे अच्छे कामों पे चलाने की तौफीक दे, हमारी खासकर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं कि सियासी लीडर जो सितारा मरीज़ के अंडर आते हैं, जिनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो या एरीज़ है, वो मैं नाम के वर्ड्स भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली मैं इतना डीप नहीं जाना चाहती। तो ये हिडन है किसी सियासी लीडर के या किसी सियासी रहनुमा की मौत के आसार नज़र आ रहे हैं 22 फरवरी के दरमियान। अल्लाह करे ये टाइम गुजर जाए तो उसके बाद ये ख़तरा टल जाएगा। बेहतर है कि अल्लाह ताला इस ख़तरे को भी टाल दे। इमरान खान यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के भी थोड़े से हालात कशीदा हैं, सेहत के हवाले से भी, और कुछ अपोजिशंस और कुछ इनको खतरात से दो चार रहना पड़ेगा। और ये सारा टाइम जो मैं बता रही हूँ, ये टाइम पीरियड साल के पहले क्वार्टर जो 3 महीने हैं वो ज़्यादा ज़रा प्रॉब्लमेटिक हैं। तो अल्लाह करेगा मई से या अप्रैल 2020 से हालात में बेहतरी आना शुरू होगी, और हम सब यही चाहते हैं, और हमारी दुआ भी है अल्लाह ताला से कि कुछ ऐसा हो कि हमारे सियासी इस्तेहकाम आए और हमारे मुल्क में तरक्की हो। हम तो यही चाहेंगे, ये तो हमारी दुआएं हैं, और आवाम तो ये चाहती है कि हमें आसानियाँ मिलें। तो इंशाल्लाह आसानी के आसार होंगे। बाकी मैं इंडिविजुअली या पर्सनली किसी को भी डिस्कस नहीं करूँगी। जिनके नाम, मैं आपको नाम के अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ कि जिनके नाम आजकल का यानी कि अप्रैल तक, या समझ लें 21 अप्रैल तक का जो टाइम थोड़ा सा ख़राब है, वो मैं आपको नाम के अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। एम नाम है इसमें, एम से हो गया सन का जो है उसका, और दूसरा एरिस यानी कि ए नाम से, और एन नाम से, जिनका सारा मरीख है, यानी कि मरीख, सूरज और सन, मार्स, और ए भी मार्स में कंसिडर होता है। इनको ज़रा होशियारी से और ज़रा आराम से काम लेना चाहिए। मैं तो एडवाइस ही कर सकती हूँ। इनकी सियासी इस्तेहकाम को थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें थोड़ा ख़तरा है इज़्ज़त वक़ार में, और ख़ास कर इनको अपने सेहत के हवाले से मैं कहूँगी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। बाकी सब अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके फर्स्ट क्वार्टर जो हैं अप्रैल तक ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसको आप फरवरी मार्च भी कह सकते हैं। और 22 अप्रैल के बाद जुलाई अगस्त का टाइम बेहतर है। अगस्त से सितंबर तक ज़्यादा, अगस्त सितंबर नवंबर बेहतर हो जाएंगे, एतदाल में आ जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने ख़ास कर कोरोना के बारे में ज़रूर बताना है, तो वो भी मैं बताती चलूँ कि ये जो सेकंड फेज़ शुरू हुई है, ये मैं अपने एक 14 अगस्त के इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि 4 अक्टूबर से लेकर 28 दिसंबर तक एक सेकंड फेज़ चलनी होगी, और वो चली, और वो डेंजरस तो होगी, लेकिन उसमें जो अमवात की शरह है वो थोड़ी नॉर्मल होगी और वो कम होगी इंशाअल्लाह ताला। ये 22 फरवरी तक थोड़ा सा इसमें मसला है, वो भी हम कवर कर जाएंगे। हम लोग बड़े जीदार हैं, हम पाकिस्तानी अवाम मिलके हम अपने अल्लाह के हजूर ये दुआ करते हैं, बल्कि अपने दूसरे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए भी, बल्कि सब लोगों के लिए हम यही कहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस चीज़ से, इस बीमारी से जल्द अज जल्द अल्लाह ताला छुटकारा दिला दे और इस बीमारी को पूरी दुनिया से दूर फरमा दे।
कैलकुलेशन के मुताबिक देखा जाए तो चूँकि 2021 5 का अदद है, तो 5 का अदद जो है वो सितारा सूरज यानी कि लियो का ज़ोडिक साइन है। तो ये भी एक इसमें इल्मुल अदाद में आ जाएगा कि 5 का अदद यानी कि जो सितारा लियो के हैं, जिनका ज़ोडिक साइन लियो है और जिनका नाम मीम से या एम से शुरू होता है, उनके लिए ये साल इस क्वार्टर से निकल के यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद कामयाबी के लिए बेहतर है। और जिन लोगों के या जिन अफराद के एरीज, लियो और सेजिटेरियस से मैं नाम बताती चलूँ, जिनके नाम एफ से शुरू होती हैं या फे से, और एरीज के नाम बताती चलूँ जिसे अलिफ और अलिफ मद्दा, ये इसके बाद अगर अल्लाह करे अप्रैल तक इनके हालात बेहतर हो जाते हैं, अल्लाह करेगा, और इसके बाद इनका जो अगला साल आने वाला जो बाकी जो महीने हैं 7-8 माह वो बेहतर चलेंगे। यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस वालों का ये साल ज़्यादा अच्छा है। दरमियाना साल कहलाया जाएगा उसके लिए जेमिनी, वर्गो और कैप्रिकॉर्न्स के लिए। और जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में डेट्स कंफर्म करवा दी हैं कि 15 से 15 हर महीने की 15 से मैंने आपको क्लासिफाई कर दिया था कि जिनके ज़ोडिक साइन जो होते हैं उनके मुताबिक आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर नहीं तो पर्सनली मैं आपको कहती हूँ कि मेरा व्हाट्सएप आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है। किसी ने कोई अपना ज़ाती तौर पे या कोई अपने इन हालात का हॉरोस्कोप के ज़रिए तफसील जाननी हो या अपने स्टार्स का मालूमात देखनी हो या ज़ोडिक साइन को देखना हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप करें और मुझे कमेंट करें। आप लोग कमेंट इसी में करना शुरू कर देती हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप तो मुझे इसमें मेरे व्हाट्सएप करें मुझे, तो मैं उनमें आपको आपकी तफसीली और आपको हॉरोस्कोप में और आपका ज़ैजा बना के बता दूँगी। हर साइन, हर बुर्ज, हर एक की जो हालात और होते हैं और तब्दीलियाँ होती रहती हैं, और हर एक की ज़िंदगी के ताल्लुकात या मामलात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए अब इसका ये मतलब नहीं है ओवरऑल जब हम कहते हैं कि एरीज और टॉरस और व्हाटएवर लियो के हालात एक जैसे हैं और इन सारे लोगों के एक जैसे आएंगे, लेकिन नहीं। मैं बताती चलूँ कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनका जो ज़ैजा बनवाते हैं, और वो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हालात के मुताबिक और उनकी ईयर के मुताबिक उनकी मून की पोजीशन को देखते हैं, जो कि एक बुर्ज में 2.5 दिन रहती है। मून जिस ज़ोडिक में होगा वो एक्चुअल आपका ज़ोडिक साइन होगा। तो इसके लिए लाजमी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से आपको ज़ैचे या हॉरोस्कोप की ज़रूरत होती है, लेकिन जो डेट्स वाइज मैंने बता दिया है एक एक महीने की, वो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनैलिटी एनालिसिस कर सकते हो, जस्ट अपने नॉर्मली हालात को। तो इंशाल्लाह बहुत एक लंबी वीडियो हो गई, और इसमें मैंने जो चीज़ा जो मसाइल थे जो हमारे मुल्क के साथ चलने हैं वो मैंने आपको थोड़े बताए हैं। आगे डिबेट होती रहेगी, आगे वीडियोस में शेयर करती रहूँगी, और जो चीज़ें होती रहेंगी वो क्वार्टरली भी, मंथली भी और वीक वाइज भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो तफसील तो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। तो इस दुआ के साथ और इस खुशी के साथ मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ कि नया साल आप सबके लिए बहुत मुबारक साबित हो। हर ज़ोडिक साइन के लिए, हर अफराद के लिए, हर इंसान के लिए और हर भाई के लिए हमें अल्लाह ताला अच्छा रहने की तौफीक दे, और हमें आपस में सुलूक, इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत की से रहने की तौफीक दे। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ कल हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपको नया साल बहुत मुबारक करे, और ये मेरे साथ आप पाकिस्तान के लिए भी एक दुआ करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। सुमेरा अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।